So let's start with that. In today's session, it will be approximately of 30 to 35 minute session. I will be touching four topics. First of all, welcome everyone and a very good morning. And now what four topics will be touching? First of all, scope of commerce, यानी कि अगर आपने कॉमर्स लिया है in your class 11th, in your class 12th, in your higher secondary, if you have chosen the commerce, तो आफ्टर 12th आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कौन कौन से कोर्सेज में आप एंटर हो सकते हैं, पहला टॉपिक हमारा वो रहेगा. सेकेंडली, why to choose commerce, this question will be discussed as most of the students are in dilemma while choosing a subject, while choosing a stream in class 11th, whether they have to go for science or they have to go for commerce or they have to go for humanities. साइंस और ह्यूमैनिटीज के बारे में फिर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है कि उसमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएंगे और समथिंग लाइक दैट. लेकिन कॉमर्स के बारे में वी पीपल आर कंप्लीटली इग्नोरेंट कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और उन सब्जेक्ट्स को क्या हम पढ़ पाएंगे या नहीं, whether they will be interesting or not, something like that. So why to choose commerce, this will be our second topic of study. And the third point was your questions, because in the registration few of the questions I have received, however lot of registrations I have received but only 5 to 6 candidates have joined this. I don't know the reason, but whatever questions were raised in that registration will be discussed. And lastly, the students who are joining this session, who are attending this session, will be given certain benefits, so that will be declared at the last of the session. So without wasting much time, let's begin with that, and we'll be starting this with a video. 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर पापा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर. And my fate was sealed. मैं क्या बनना चाहता था, साला किसी ने पूछा तक नहीं. So this is the actual scenario in our lives. We never ask to ourselves, ये सिर्फ हमारे पेरेंट्स की बात नहीं है, but we also people never ask to ourselves what we want to become. So before moving further, let us make your mind very much clear कि आज जो भी कुछ आप यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में कि आप जो खुद चाहते हैं वही आपको आगे करना है, वही आपको बनना है. Let's begin with our session. The career options will be choosing in commerce. Normally हम सबको ये पता है that we do have the option of CA. But let me tell you, we do have lot of other career options in commerce. The first one, obviously, we do have, that is CA, Chartered Accountant. Chartered Accountant का क्या काम होता है, कैसे उसमें हम एंट्री ले सकते हैं? आफ्टर क्लास 12th, जैसे ही आपका 12th का एग्जाम आप दे देते हैं, इसके बाद में 3 स्टेजेस इसकी हैं. फर्स्ट वन इज फाउंडेशन, सेकंड इज इंटर एंड थर्ड वन इज फाइनल्स. After completing these 3 stages, you will get a registration with an institute known as ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. और CA बनने के बाद में आपके पास में 2-3 ऑप्शंस रहते हैं. पहला, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, किसी बिग पब्लिक कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और स्टार्टिंग पैकेज आपका होगा 10 to 12 लाख रुपीस एनुअल. ये मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज है, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट. इसके अलावा आप अपना खुद का ऑफिस सेट कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद में एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर आप वर्क कर सकते हैं. सीए का मेन वर्क होता है अकाउंट्स को ऑडिट करना. ऑडिट का मीनिंग ये है कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, सीए नेवर प्रिपेयर अकाउंट्स. द इंपॉर्टेंट थिंग इज सीए का काम अकाउंट्स प्रिपेयर करना नहीं है. अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट, बट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट ऑडिट दोज अकाउंट्स कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है. अगर उन अकाउंट्स में कोई भी इनएक्यूरेसी होती है, that has to be revealed by chartered accountant. So this is the first career option in the commerce. Moving further, we do have, that is company secretary. जितनी भी joint stock companies होती हैं, जितनी भी joint stock companies होती हैं, उन सबको company secretary compulsorily अपॉइंट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में.
और कंपनी सेक्रेटरी का मेन वर्क क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी मेनली फोकसेस ऑन द लीगल पार्ट ऑफ द कंपनी। जितनी भी कंपनीज होती हैं उनकी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, और अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो उस कंपनी को बंद किया जा सकता है। सो व्हाट आर द लॉज एंड रेगुलेशंस दैट अ कंपनी हैज टू फॉलो, दैट इज टू बी अंडरटेकन बाय द CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी सेक्रेटरी की कि वो अपनी कंपनी को के सारे एक्टिविटीज को लीगल तौर पे कंटिन्यू रखे। इसके लिए भी हमारे पास में वही ऑप्शन है। क्लास 12 का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद में 3 स्टेजेस हमारे पास रहती हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। और कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स और चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स दोनों एक साथ किया है, दोनों डिग्रीज एक साथ लेके, और फिर वो काम करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बिकॉज दोनों ही कोर्सेज में, दोनों ही करिकुलम में 80% सिलेबस सेम होता है। तो एक सी पढ़ाई करके और 2 एग्जाम देके 2 डिग्री एक साथ आपको मिल जाती है। बोथ ऑफ दीज, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, बोथ ऑफ दीज आर द प्रोफेशनल डिग्रीज। प्रोफेशनल डिग्रीज का ये मीनिंग होता है कि आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहें तो कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय, लेकिन अगर आप अपना खुद का ऑफिस सेट करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास में ऑप्शन रहता है, आपको अपना खुद का ऑफिस सेट करने की पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है। मूविंग फर्दर, वी हैव द थर्ड करियर ऑप्शन, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटेंट्स, और कॉमनली नोन एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। मेनली ये फोकस करते हैं किस फील्ड पर? ये फोकस करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए, और प्रोडक्शन यूनिट्स में इनका काम होता है हाउ टू रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है लाइक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मयूर लिमिटेड, और एनी ऑफ द कंपनी ऑफ द वर्ल्ड जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे ही जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके कॉस्ट को अगर कम कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज होना ही होना है कंपनी का। So the cost and management accountant or the cost work accountants, also commonly known as cost work accountants, they mainly focuses over reducing the per unit cost of production. और जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करते हैं शानदार पैकेजेस पे। इनके पैकेज की कोई लिमिट नहीं, स्टार्टिंग 10 to 12 लाख का है, और अपर लिमिट देयर इज नो अपर लिमिट। इसके लिए भी सेम ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, दैट इज फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल्स। 3 स्टेजेस को क्वालिफाई करके, जस्ट आफ्टर 12 3 स्टेजेस को क्वालिफाई करके वी कैन बिकम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दिस वाज द थर्ड करियर ऑप्शन। आफ्टर दैट वी डू हैव the career option of hotel management. This is a emerging and a most promising career option these days in the commerce field, जिसमें कि आपको 3 options मिलते हैं, कैटरिंग का अगर आप शेफ बनना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी का, एंड एज अ मैनेजर इन द 4-star and 5-star hotels। शानदार कोर्स है। आफ्टर 12th आपको सिर्फ 4 years अपने इन्वेस्ट करने हैं, एंड डायरेक्टली यू विल बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर और एज अ हेड शेफ इन द 5-star and the 4-star hotels. Even this course also provides you a career option abroad. सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं इससे। So this is a hotel management course, which is again one of the most promising career option in the commerce field. This was the 4th one. होटल मैनेजमेंट से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में लॉ का ऑप्शन आता है, which is again the best option in my view particularly, which is the best option. Why it is so? Because law provides you the knowledge of the law of the land. जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उस कंट्री के लॉ को जानना ही आपको चाहिए, बिकॉज देयर इज अ मैक्सिम दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर या किसी ने आपको पकड़ा है और वो आपको दुनिया भर के लॉज समझाने लगेगा, जैसे ही आप बताएंगे दैट आई एम अ लॉयर, वो अपना सारा लॉ भूल जाएगा और उसके बाद सिर्फ वो लीगल बातें करेगा। बिकॉज जब तक पर्सन इग्नोरेंट होता है लॉ के थ्रू के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, हमारे लॉज में क्या लिखा हुआ है, कोई भी उसे इलीगली डरा सकता है, मिसगाइड कर सकता है। सो चाहे आप अपना कोई भी करियर ऑप्शन चूज करें, बट लॉ की नॉलेज आपको जरूर एक्वायर करनी चाहिए। और एज अ करियर अगर आप लॉ को ऑप्शन एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके अलावा तो आपके लिए बेस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज you will become a person
who will fight for justice. हमारे कंट्री में जस्टिस के लिए अगर लड़ेगा कोई तो वो कौन होगा? वो लॉयर होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो एक बहुत ही नोबल और बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन चाहिए, अगेन लॉ प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप डायरेक्टली लॉ कोर्स कंप्लीट करके जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देके विदाउट एनी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स, देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ जज, आप डायरेक्टली जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देके और जज बन सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉयर एंड साइबर क्राइम सेल में भी जबरदस्त करियर ऑप्शंस लॉ के अवेलेबल होते हैं। अगर आप लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, जस्ट आफ्टर 12th आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, विच इज नोन एज क्लैट, CLAT क्लैट। और क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में थ्रू आउट इंडिया देयर आर 37 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, और उन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। 5 इयर्स का ये कोर्स होगा। इट विल बी अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें BA प्लस LLB, BBA प्लस LLB, BCom प्लस LLB के ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 इयर्स ऑफ लॉ you will be eligible to practice as a lawyer in the high court. You will be eligible to give the examination, the competition examination for judicial services. You will be eligible to be appointed as a legal advisor in the multinational companies. And again, मैं इसमें कहूंगा कि इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मनी की कोई अपर लिमिट नहीं है। सिंगल हियरिंग का जो लॉयर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, सिंगल हियरिंग का 50 लाख रुपीस तक का चार्ज कर सकते हैं। सिंगल हियरिंग का मीनिंग आप समझते हैं? एक दिन, एक बार जाके कोर्ट में अपीयर हुए 50 लाख रुपीस तक का चार्ज करते हैं। सो देयर इज नो लिमिट फॉर मनी। इवन अगर आप जुडिशियल सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं, आफ्टर बिकमिंग अ जज आपकी इनिशियल पहली सैलरी होगी 90,000 रुपीज मंथली। पहली इनिशियल सैलरी 90,000 रुपए महीना होगी, और उसके बाद में एज पर द एक्सपीरियंस तो वो बढ़नी ही है। सो दिस इज रियली अ फैंटास्टिक करियर ऑप्शन। अब बात ये आती है कि क्या आप इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, या एज अ लॉयर आप बनना चाहते हैं, या फिर आप एज अ नॉलेज इसको एक्वायर करना चाहते हैं। अगर आप आफ्टर 12th इसे ऑप्शन चूज नहीं कर पाते, तो अगेन आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर ग्रेजुएशन आप अपना BCom कंप्लीट करने के बाद में, BBA कंप्लीट करने के बाद में भी लॉ फील्ड में एंटर हो सकते हैं, और तब आपको 3 इयर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। हाँ, डिफरेंस ये आ जाता है कि जस्ट आफ्टर 12th अगर आपने लॉ फील्ड में एंटर हुए हैं तो डायरेक्टली 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको मिलता है। आफ्टर 12th 5 इयर्स में आप लॉयर बन जाते हैं। और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन एंटर होते हैं लॉ फील्ड में LLB के लिए, तो उसमें 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड 3 इयर्स ऑफ LLB, टोटल 6 इयर्स आपके लाइफ के इन्वेस्ट होते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज बेटर टू मेक योर माइंड क्लियर बिफोर entering to class 11th or 12th and give the entrance exam just after 12th। जो करियर ऑप्शन पहले से चूज करके अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे लाइफ के बहुत सारे साल सेव हो सकेंगे, बहुत सारा हमारा टाइम सेव हो सकेगा, एनर्जी सेव हो सकेगी, और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में हमारे पास में नेक्स्ट करियर ऑप्शन होता है विच इज नोन एज करियर इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या चाहिए, आपके पास में BBA या फिर BCom, कोई भी ग्रेजुएशन की एक डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास में, अभी तक जितने करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए, CA, CS, CMA, होटल मैनेजमेंट, लॉ, ऑल दीज करियर्स आर द प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस। BCom जो होता है, BCom BBA ग्रेजुएशन, ये डिग्री कोर्स होता है, और ये डिग्री एक्वायर करने के बाद में आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर हो सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर होते हैं तो आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन बिकम अ लोन ऑफिसर, वी कैन बिकम एन इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, वी कैन बिकम एन ऑडिटर इन द बैंक, वी कैन बिकम एन इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव, एंड वी कैन बिकम अ tellers, that is the clerical as well as probationary officer jobs are there in the bank। like a simple words में अगर मैं बात कहूं तो बैंक में मैनेजर बनने की अपॉर्चुनिटी। बात क्या आती है कि अगर हम बैंकिंग को अपना करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स तो नहीं है,
तो कैसे हम इसमें एंटर हो सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 12th आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना है। वो ग्रेजुएशन आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट फाइनेंस की नॉलेज मिलती रहे। और आफ्टर दैट हमारे पास में बैंकिंग सेक्टर में एंटर होने के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबसे पहला होता है कि हमारे पास में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी होती हैं। जो मार्केट में आप देखेंगे कि हमारे पास में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, और पब्लिक सेक्टर का मीनिंग है जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, लाइक एसबीआई, पीएनबी, ठीक है। और हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो हमारे पास में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अवेलेबल हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में होगा बैंक एग्जाम, विच इज कॉमनली नोन एज आईबीपीएस, इंटीग्रेटेड बैंकिंग पर्सनल सर्विस कमीशन। एसबीआई को छोड़ के जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो सब आईबीपीएस के थ्रू बैंक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और उसके रैंकिंग के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। क्योंकि सेकंड स्टेज हमारी क्या रहती है बैंक के लिए, बैंक एग्जाम के बाद में बैंक इंटरव्यू, एंड डायरेक्टली वी विल बी पोस्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द बैंक्स। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात है। एसबीआई की अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो अपने खुद के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, तो वो आईबीपीएस के थ्रू एंट्री नहीं लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर में आपको कोई पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम्स अपीयर होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, और एप्टीट्यूड टेस्ट देने से पहले भी मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग, और वो भी पेड होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो 6 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या आपको उसमें आपकी तरफ से कुछ पैसा लगेगा, नहीं। जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ये सब अपनी तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं, और उसमें पेड ट्रेनिंग ये होती है, आप लोगों को स्टिपेंड दिया जाता है। उसके बाद में एक एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड देन ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं उसको कंप्लीट करके आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपॉइंट हो सकते हैं। सो ये है करियर ऑप्शंस इन द बैंकिंग सेक्टर। सो अगेन बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटी है, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जिसके माइंड में भी होता है कि हम ज्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए बैंकिंग में अपना करियर चूज करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बिकॉज बीकॉम करने में, ग्रेजुएशन करने में ज्यादा पैसा लगता नहीं है। मुश्किल से 4 से 5 हजार रुपए में 3 साल का, आई रिपीट, 4 से 5 हजार रुपए लगा के 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। पूरे 3 साल में 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं लगते हैं। और उसके बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, हार्डली 500 to 600 रुपीज का एंट्रेंस फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम दिया, और उसके बाद में आप बैंक इंटरव्यू में अपीयर होके पब्लिक सेक्टर बैंक में अपॉइंट हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को चूज करते हैं तो उसमें तो आपकी जेब से 1 रुपया भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेनिंग है वो भी पेड ट्रेनिंग होगी, जो आपको बैंक खुद प्रोवाइड करेगी, एंड जस्ट आफ्टर दैट यू कैन जस्ट ज्वाइन द कंपनी एज अ मैनेजर। तो ये करियर ऑप्शन बैंक के हिसाब में अगर आप लेना चाहते हैं तो अगेन इट्स अ नाइस वन। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन रहता है जॉब्स इन द इंश्योरेंस कंपनीज। These days insurance companies are really having a variety of career options, और बहुत ही अच्छे इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ही डिमांड है। मेन बात मैं कहूंगा कि डिमांड काफी है, चाहे आप बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, चाहे हम बात करें व्हीकल इंश्योरेंस की, चाहे हम बात करें मेडिकल इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आज अवेलेबल हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स भी मिलती हैं, और इसमें जो नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी, उसके थ्रू भी आप इसमें ऐड हो सकते हैं। एक्चुअल्स की इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, यानी कि एक पर्सन जो कि एज अ किसी ने ज्वाइन किया इंश्योरेंस कंपनी में, और वहां पे कोई पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना आता है, उससे आप कितना प्रीमियम चार्ज करेंगे, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वर्क होता है वो एक्चुअल साइंस में पढ़ाया जाता है। एक्चुअल साइंस का कोर्स कंप्लीट करके भी आपके पास में इंश्योरेंस की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं, और पब्लिक सेक्टर जॉब्स भी, पब्लिक सेक्टर यानी कि जो नेशनलाइज्ड है, और प्राइवेट सेक्टर जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस के। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द करियर ऑप्शन। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है इंडियन सिविल सर्विसेज। आई थिंक इसके बारे में तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। इंडियन सिविल सर्विसेज बहुत ही नोबेल और प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन है। बात ये आती है
कि क्या एक कॉमर्स का पर्सन इंडियन सिविल सर्विसेज में ऐड हो सकता है, ज्वाइन कर सकता है। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मैं आपको दोनों बताऊंगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं तो पीएससी सर्विसेज भी रहती हैं, दैट इज स्टेट सिविल सर्विसेज भी हैं, और अगर आप यूनियन के साथ टाई अप होना चाहते हैं तो इंडियन सिविल सर्विसेज भी हैं। और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कितने करियर ऑप्शन इंडियन सिविल सर्विसेज में है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द Indian Administrative Services, that is very commonly known as IAS. Then Indian Police Services, IPS. Then Indian Foreign Services, IFS. Then Indian Audit and Account Services. Audit and Accounts के लिए साइंस के पर्सन को और ह्यूमैनिटीज के पर्सन को कभी चूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। IAS, IPS एंड IFS इन तीनों के लिए तो तीनों फैकल्टी वालों के लिए अवेलेबल है, लेकिन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए सिर्फ कॉमर्स के पर्सन को ही चूज किया जाएगा। आफ्टर दैट वी डू हैव द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, वी डू हैव इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज के लिए उसी पर्सन को चूज किया जाएगा जो लीगल बैकग्राउंड से है, जो लॉ फील्ड से है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कॉमर्स के कैंडिडेट के लिए लॉ के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस में अकाउंट्स की सर्विसेज के लिए, एंड इंडियन स्टेट सर्विसेज, दैट इज जो स्टेट मैनेजमेंट करता है कंट्री के। सो वी डू हैव लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। सिर्फ बात यह है कि हमें अपना माइंड मेकअप करना है, हमें ब्रॉडली सोचना है कि करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं हमें उसमें चूज करना है और उसी को फोकस करके टारगेट करके हमें आगे बढ़ते जाना है। देयर इज नो लिमिट फॉर द करियर ऑप्शंस if you have chosen commerce in your class 11th and 12th. So after 12th you will be having lot of career options. Fine. So just to summarize, let's see what are the other further career options available to us. Career in IT sector. These days information technology sector has really become a vast and a dynamic area of job opportunities. Digital marketing, or we can go for BCA, that is Bachelor of Computer Application, MCA, that is Master of Computer Application, और इसके बाद में जितनी भी IT सेक्टर कंपनीज हैं वो आप लोगों को विदाउट एनी अपर लिमिट ऑफ करियर ऑप्शन, अपर लिमिट ऑफ सैलरी करियर ऑप्शंस अवेलेबल करवाती हैं, पैकेजेस अवेलेबल करवाती हैं। सो IT में अगर आप जाए, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इफ यू वांट टू चूज IT सेक्टर एज अ करियर ऑप्शन इन क्लास 11th आप कॉमर्स लेते समय आपके पास में मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपको MCA में जॉब करना, MCA का कोर्स करना है विच इज अ प्रोफेशनल डिग्री, तो आपके पास में 11th एंड 12th में कॉमर्स विद मैथमेटिक्स होना जरूरी हो जाता है। फर्दर वी डू हैव द करियर ऑप्शंस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। MBA अगर आप करते हैं, BBA करते हैं, MBA करते हैं, और MBA में हमारे पास में मार्केटिंग के, फाइनेंस के, एंटरप्रेन्योरशिप के, अकाउंटिंग के, लाइजनिंग के, एडवर्टाइजिंग के, पर्सनल सेलिंग के, देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस इन मैनेजमेंट। सिर्फ एक मैनेजमेंट, जैसे आप कभी इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग के एंड अदर मैकेनिकल इंजीनियर के इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह से MBA में देयर आर लॉट ऑफ n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस। सिर्फ आपको MBA में एडमिशन लेना है और फिर ये चूज कर लेना है कि कौन से फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। सो आई वुड सजेस्ट, अभी जो मार्केट की स्टडी चल रही है, अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, इस हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट में, MBA में फाइनेंस का करियर चूज करते हैं, देन देयर विल बी एंडलेस ऑप्शंस फॉर यू, फाइनेंस के लिए अगर आप चाहते हैं तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि MBA में जितना बड़ा इंस्टीट्यूट आप चूज करते हैं उतने ही अच्छे कैंपस प्लेसमेंट ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। आपको डिग्री एक्वायर करने के बाद में जॉब सर्च करने नहीं जाना पड़ता है, बल्कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको सर्च करते हुए आपके इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं। सो मैनेजमेंट कोर्सेज के थ्रू अगर आप जाते हैं, अगेन इट्स अ फैंटास्टिक करियर ऑप्शंस। इसके अलावा अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अगेन कॉमर्स के लिए टीचिंग में भी कोई लिमिट नहीं है। आपको करना क्या है, आप B.Ed कर सकते हैं, आप D.Ed कर सकते हैं। B.Ed इट इज अ डिग्री कोर्स, D.Ed इट इज अ डिप्लोमा कोर्स। आप नेट एंड सेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप JRF के थ्रू जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देयर इज अगेन नो लिमिट फॉर योर करियर्स। आप टीचर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं,
आप मेंटर बन सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। आज की तारीख में करियर काउंसलिंग के या फिर मोटिवेशनल स्पीकर के जो आप देखेंगे ऑप्शंस या फिर उसके डिमांड, वो किसी करियर में और नहीं अवेलेबल है। सिर्फ आपको पर्सन को अवेयर कराना होता है कि आप उसके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो क्या क्या कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वो अगर डेवलप हो पाती है तो करियर इन टीचिंग में ही हो पाती है। So this is again one of the promising career options for a commerce student. Then we do have one more professional course known as CFA. CFA, that is Certified Financial Analyst or a Certified Financial Planner. This is again a fantastic career option in the field of finance. आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम अक्सर सुना होगा। म्यूचुअल फंड में कब कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन डिसाइड करेगा कि कितनी रिस्क है और उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाना है, ये सारे काम होते हैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट के, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के। इसके बाद में हमारे पास में बात आती है कि अगर हमने CFP का कोर्स, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट एक इंटरनेशनल डिग्री है और इसी को इंडिया में जो प्रोवाइड किया जाता है वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। आपके पास में इन्वेस्टमेंट बैंकर का, पोर्टफोलियो मैनेजर का एंड रिस्क मैनेजर के 3 करियर ऑप्शंस इस कोर्स को करने के बाद में बनते हैं। फाइनली वन मोर करियर ऑप्शन वी आर हैविंग, दैट इज करियर इन आर्किटेक्चरल। बहुत बड़ा मिथ है कि जो कॉमर्स का बंदा है वो आर्किटेक्चरल में नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकता है। BArch का कोर्स आप करके और आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल्स को डिजाइन कर सकते हैं, आप टेम्पल्स को एंड बड़े मॉल्स को डिजाइन कर सकते हैं, आप ब्रिजेस को डिजाइन कर सकते हैं, डैम्स को डिजाइन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में भी करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। फिर से ध्यान रखने वाली बात यह है, इफ यू वांट टू फाइंड योर करियर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चरल, आपको क्लास 11th में जब आपने कॉमर्स चूज किया है, कॉमर्स विद मैथ्स लेना है। कॉमर्स विद मैथ्स अगर आप लेते हैं तो आपके लिए BArch का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। एंड अगेन डिफेंस सर्विसेज, याद रखिएगा एक कॉमर्स का बंदा बहुत ही आराम से NDA और CDS का एग्जाम देने के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है। ऑप्शन ये है कि उसे आर्मी में ऑप्शंस मिलेंगे, वो नेवी या एयरफोर्स में नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ डिफेंस में जाना चाहते हैं तो फिर आप बाय यू आर जस्ट unnecessarily bulking your mind with such a subjects which are not the cup of tea for you. तो आप इजी सब्जेक्ट्स को चूज करके कॉमर्स में आके और डिफेंस सर्विसेज में भी करियर अपना बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन वी डू हैव द एंटरप्रेन्योरशिप। जो बच्चा कॉमर्स चूज करता है उसको नॉलेज मिलती है बिजनेस वर्ल्ड की। उसे पता चलता है कि अगर मैं दुनिया में और कुछ ना कर सकूं तो मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, जैसे कि आप जानते हैं आज की तारीख में जो सिचुएशन है, लॉकडाउन लग चुके हैं, जगह जगह पे जो बिजनेसेस हैं बंद चल रहे हैं, लेकिन यहां पे भी IT सेक्टर में कोई रिसेशन नहीं है, फाइनेंस सेक्टर में कोई रिसेशन नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई रिसेशन नहीं है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कौन कर सकता है? वर्क फ्रॉम होम एक कॉमर्स का बंदा ही कर सकता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अगेन अ फैंटास्टिक करियर ऑप्शन वी डू हैव। अनफॉर्चुनेटली टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए सोचे थे सारे यहाँ पे कवर हो नहीं पाए अभी तक। तो मैं थोड़ा सा इसको कुछ पॉइंट्स को कट शॉर्ट करके और आगे बढ़ता हूं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास में डिजाइनिंग कोर्सेज भी रहते हैं। याद रखिएगा डिजाइनिंग कोर्सेज रहते हैं, आपके पास में जर्नलिज्म के कोर्सेज भी रहते हैं। यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये जो करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताया ये कोई एंड है, आपके पास में अभी भी इसके आगे बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्या है कि जो पर्सन क्लास 11th में है उसके लिए जैसा पिक्चर अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसी एक सिचुएशन रहती है कि कौन से रास्ते पे जाएं। ह्यूमैनिटी, साइंस एंड कॉमर्स, लॉट ऑफ डिफिकल्ट ऑप्शंस आर देयर। बहुत बड़ा डिसीजन एक लेने का होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए भीड़ के पीछे जाना जरूरी नहीं है। यू डोंट ऑलवेज नीड टू फॉलो द क्राउड्स। इफ यू आर राइट, इट्स ओके टू बी वॉक अलोन।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे नेबर्स ने जो जो कोर्स किए हैं, हम उसी के पीछे जाना चाहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना इंटरेस्ट क्या था. सो आई वुड जस्ट से, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द क्राउड्स, फाइंड योर ओन वे एंड मेक योर ओन पाथ. बिकॉज मैंने जब एक पर्सन को एक बार पूछा कि आप ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसमें से कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे, क्या आप इस पर्सन के तरह रहना चाहेंगे जो एज अ मैनेजर सबको गाइड कर रहा है, या फिर आप इस क्राउड का हिस्सा बनना चाहेंगे. सो एवरीवन वांट्स टू बिकम अ मैनेजर. हर कोई लोगों को गाइड करना चाहता है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द क्राउड्स. वो हमेशा मैनेजर बनके लोगों को गाइड करना चाहता है. अगर आप खुद अपने करियर में क्राउड का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो फिर आप करियर ऑप्शन चूज करते समय या फिर आप अपना स्ट्रीम चूज करते समय क्राउड का पार्ट कैसे बन सकते हैं. चूज वाइजली एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू लिव वेल. सोच समझ के चूज कीजिए, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी को लीड करने का काम है वो मैनेजर का ही होता है, और मैनेजर बनने का ऑप्शन जो अवेलेबल है वो एमबीए करने के थ्रू ही अवेलेबल है. इतने सारे जो करियर ऑप्शंस हैं उनमें से कुछ भी आप चूज करते हैं, सबके लिए एक डेस्टिनेशन है, वहां आप आराम से पहुंच जाएंगे. बात यह है कि आपने सही समय पर अगर सही डिसीजन लिया होगा तो जल्दी आपको अपना अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, और अगर आपने इनिशियली गलत डिसीजन ले लिया तो बाद में जाके आपको पछतावा होगा, और हो सकता है आप गलत समय आपको ज्यादा लग जाए अपने करियर के लिए. जस्ट बिफोर एंडिंग ऑफ दिस सेशन, मैं एक वीडियो और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा जो कि उस चीज से रिलेटेड है. मेनी टाइम्स इट हैज बीन सीन कि बच्चा सोचता है कि क्यों ना मैं साइंस के थ्रू आगे चला जाऊं, और फिर बाद में मैं करियर ऑप्शन अपना कॉमर्स में बना लूंगा, या मैं बैंकिंग में चला जाऊंगा, या बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस रहती हैं. तो अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले इनिशियल लेवल पे आपने अपना जो करियर है वो साइंस के लिए लिया, आपने पहले साइंस चूज किया, 2 साल तक आपने खूब मेहनत करके साइंस में पढ़ाई की, और बाद में जब आपको महसूस हुआ कि नहीं, दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी, चलिए अब मैं अपना करियर ऑप्शन चूज करता हूं, वापस से अपना करियर ऑप्शन ढूंढने निकलते हैं. आप कहां पे, आप अपना करियर ऑप्शन ढूंढने निकलते हैं बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, डिफरेंट जो भी आपके पास में सेक्टर्स अवेलेबल हैं. तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि आप दुनिया की नजर में ऐसा डिसीजन लेने के बाद में फूल ही कहलाएंगे. क्यों? चलिए एक लास्ट वीडियो के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. बहुत जरूरी होता है सही समय पे सही गाइडेंस का मिलना और सही चॉइस को लेना. आई होप आपको एक वीडियो विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पे. वो देखो, वो तुम्हारा गधा. How dare you call him a gada? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है. अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्या के लिए किया? सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि बच्चे ने चूज क्या किया, प्रॉब्लम ये होती है कि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है. अगर किसी को भी कहा जाता है कि आपको अपना करियर बनाना है और आपको चूज करना है अपना करियर किस में, कॉमर्स में, तो उसके पास में उसे नजर ही नहीं आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी मेरे पास में कोई करियर ऑप्शन हो सकता है. तो इस वजह से बच्चा बिना कुछ सोचे समझे दुनिया की बातें सुनता हुआ और मिसगाइड हो जाता है. और दैट वाज द ओनली रीजन आई हैव जस्ट कंडक्टेड दिस सेशन टुडे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कॉमर्स अगर आप चूज करते हैं तो आपके पास में करियर ऑप्शन की कोई लिमिट नहीं है. देयर इज लिमिटलेस करियर ऑप्शंस. कुछ क्वेश्चंस में मुझे मिले थे, उन क्वेश्चंस के लिए समय अभी इतना नहीं बच पाया है क्योंकि टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है, टाइम इज रनिंग आउट. मैं आप लोगों को स्पेशल कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगा. वो ये कि अगर आपने ये सेशन जिसने अटेंड किया है, जस्ट आफ्टर दैट आप लोगों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा आप लोगों के व्हाट्सएप पे. आप लोगों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा आप लोगों के व्हाट्सएप पे. और जिंक विद्यालय में क्लास 11th में अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं, कंप्लीट 1 ईयर का मेरा ट्यूशन का 1 ईयर का
पैकेज जो कि मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज फॉर अकाउंटेंसी ट्यूशन, वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा ऑनलाइन अकाउंटेंसी सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 साल तक आप मुझसे अकाउंटेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएंगे। यू नीड नॉट टू पे अ सिंगल पेनी फॉर कमिंग ट्यूशन। ये एक स्पेशल ऑफर सिर्फ उनके लिए है जो इस समय यहाँ पे इस सेमिनार को ज्वाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो 11th में क्वालिफाई कर चुके हैं, जो 12th क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पर्टिकुलरली इस समय 11th में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर अवेलेबल है। तो आप इस ऑफर को जरूर से अवेल कर सकेंगे। करना ये होगा, जो सर्टिफिकेट मैं आपको सेंड करूंगा वो सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा, दैट विल बी योर रिसीट फॉर अ कंप्लीट फ्री सब्सक्रिप्शन।